Hello and welcome to another episode of Legal Update. The topic of discussion is Supreme Court tightens rules on summoning. Why in news? Recently, the Supreme Court's decision in Harjinder Singh versus the State of Punjab and Others 2025 clarifies the threshold for summoning an additional accused under Section 319 of the Code of Criminal Procedure. The court held that prima facie evidence, not proof beyond a reasonable doubt, is sufficient to summon a person as an additional accused. Background of the case. The case concerns a man who was allegedly taunted on 10 May 2016 by the respondent number 2 for not taking action against previous assailants involved in an acid attack. Distressed by the taunts, the man isolated himself and later died by suicide. His body was recovered on 13 May 2016 and an FIR was registered under Section 306/34 of IPC. Respondent number 2, not initially named in the FIR, presented an alibi support by parking slips and CCTV footage, leading to police exoneration. Despite the police finding respondent number 2 innocent, the trial court ordered his summoning on 4th July 2022 based on testimonies from the appellant and another witness. The High Court, using its power under Section 482 of CRPC, overturned the trial court's order, finding the material insufficient for summoning. Court observation. The Supreme Court bench of Justices Vikram Nath and K. V. Vishwanathan held that the threshold for summoning under Section 319 of CRPC is not proof beyond a reasonable doubt but mere indication of involvement based on evidence. The plea of alibi is a matter for defense during trial. Documents supporting it remain unproven until tested in court. Section 319 of CRPC is meant to ensure real offenders face trial if direct evidence implicates them. The High Court erred by accepting an untested alibi and ignoring direct eyewitness accounts. Section 319 of the Code of Criminal Procedure 1963. Section 319 of CRPC, now Section 358 of BNSS, deals with the power to proceed against other persons appearing to be guilty of offense. Empowers a court to proceed against any person appearing to have committed an offense even if not originally an accused, if evidence during inquiry or trial indicates their involvement. The power is extraordinary and must be exercised sparingly only when there is strong and cognate evidence. Case laws. Hardeep Singh versus State of Punjab 2014 established that Section 319 of CRPC is based on the principle that the innocent should not be punished, but the real culprit should not escape. The standard for summoning is more than a mere probability but less than proof beyond reasonable doubt. It requires strong and cognate evidence. Manjeet Singh versus State of Haryana 2021, once acquitted, a person cannot be summoned again as an additional accused under Section 319 of CRPC. Sughreeb Kumar versus State of Punjab 2019, reiterated that stronger evidence than mere probability is required to summon an additional accused under Section 319 of CRPC. Now it's time for the practice question. Which of the following best describes the standard of proof required to summon an additional accused under Section 319 of the CRPC? Proof beyond reasonable doubt, mere suspicion, prima facie evidence indicating involvement, or confession by the accused? Send the answer of this question in the comments below. That's all for today. Thank you so much for watching. सुप्रीम कोर्ट ने किए समन के नियम सख्त। चर्चा में क्यों? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य 2025 मामले में यह स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत किसी अतिरिक्त आरोपी को तलब करने की सीमा क्या होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब करने के लिए प्राइमा फेसी साक्ष्य पर्याप्त हैं। इसके लिए संदेह के परे प्रमाण आवश्यक नहीं हैं। मामले की पृष्ठभूमि। यह मामला एक व्यक्ति से संबंधित है जिसे 10 मई 2016 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कथित रूप से इसलिए ताना मारा गया क्योंकि उसने पहले एसिड अटैक में शामिल हमलावरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की थी। उन तानों से मानसिक रूप से परेशान होकर उस व्यक्ति ने खुद को सबसे अलग कर लिया और बाद में आत्महत्या कर ली। उसका शव 13 मई 2016 को बरामद हुआ और घटना को लेकर आईपीसी की धारा 306,
34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। प्रतिवादी संख्या 2 का नाम प्रारंभिक एफआईआर में नहीं था। उसने पार्किंग स्लिप और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक एलबाई घटनास्थल पर न होने का प्रमाण प्रस्तुत किया, जिससे पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी। हालांकि पुलिस ने प्रतिवादी संख्या 2 को निर्दोष पाया, लेकिन 4 जुलाई 2022 को ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता और एक अन्य गवाह के बयानों के आधार पर उसे समन जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए ट्रायल कोर्ट के समन आदेश को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि समन जारी करने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त हैं। न्यायालय की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति के विश्वनाथन शामिल थे, ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत समन जारी करने की कसौटी संदेह से परे प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल ऐसा संकेत भर हैं जो साक्ष्यों के आधार पर किसी भी संलिप्तता दर्शाए। एलबाई घटनास्थल पर न होने का दावा एक रक्षात्मक दलील होती है जिसे ट्रायल के दौरान परखा जाता है। इसे समर्थन देने वाले दस्तावेज कोर्ट में जांचे जाने तक अप्रमाणित माने जाते हैं। सीआरपीसी की धारा 319 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य हों तो वह असली अपराधी न्याय के कटघरे में आए। हाईकोर्ट ने एक अपरीक्षित एलबाई को स्वीकार कर और प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाहों की गवाही को नजरअंदाज कर गंभीर गलती की। दंड प्रक्रिया संहिता 1963 की धारा 319, सीआरपीसी की धारा 319 जो अब बीएनएसएस की धारा 358 बन चुकी है, उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति से संबंधित है जो अपराध में दोषी प्रतीत होते हैं। यह धारा अदालत को यह अधिकार देती है कि यदि जांच या मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों से यह संकेत मिले कि कोई व्यक्ति अपराध में शामिल रहा है, भले ही वह प्रारंभिक रूप से आरोपी ना हो, तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है। यह एक असाधारण शक्ति है जिसे बहुत सावधानीपूर्वक और समिति रूप से केवल तभी प्रयोग में लाया जाना चाहिए जब साक्ष्य मजबूत और ठोस हों। केस लॉ। हरदीप बनाम पंजाब। इस निर्णय में स्पष्ट किया गया कि सीआरपीसी की धारा 319 का आधार यह सिद्धांत है कि निर्दोष को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वास्तविक अपराधी को बचने भी नहीं देना चाहिए। समन जारी करने का मानदंड सिर्फ संभावना से अधिक लेकिन संदेह से परे प्रमाण से कम होता है। इसके लिए मजबूत और ठोस साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। मंजीत बनाम हरियाणा राज्य। यदि किसी व्यक्ति को पहले ही बरी कर दिया गया हो तो उसे सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दोबारा अतिरिक्त आरोपी के रूप में समन नहीं किया जा सकता। सुग्रीव कुमार बनाम पंजाब राज्य 2019। इस मामले में पुनः दोहराया गया कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत किसी अतिरिक्त आरोपी को समन करने के लिए केवल संभव्यतः नहीं बल्कि उससे अधिक मजबूत साक्ष्य आवश्यक होते हैं। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। निम्न में से कौन सा विकल्प सीआरपीसी की धारा 319 के तहत किसी अतिरिक्त आरोपी को समन करने के लिए आवश्यक प्रमाण स्तर को सबसे बेहतर रूप में दर्शाता है? संदेह से परे प्रमाण, केवल संदेह, संलिप्तता दर्शाने वाला प्रथम दृष्टया साक्ष्य या आरोपी का स्वीकारोक्ति। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।